शिवराज सर, वेलकम। आपका स्वागत है सेज टॉक में। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। तो आज शिवराज सर हैं अपने यहाँ पुणे से, और सर हमें कंस्ट्रक्शन में जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो वेलकम सर, स्टार्ट करिए सर। और आपको सर ये सेशन 40 मिनट्स का है, तो करीब 30 मिनट्स का दे दीजिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों के। Okay, fine, sir. जी सर। Not a problem. Yes, sir. All right. So I would like to have the option of the share screen from the admin. Yes. Jack sir, screen sharing का option दीजिए please. Visible है sir? पटेल sir? जी सर, Screen विजिबल है। visible स्टार्ट करिए सर। Okay. Good morning, everyone. My name is Shubhraj Patade. I would like to thank Dr. Rakesh Patel for giving us an opportunity to demonstrate this particular product in front of you. Today's the session is about the construction management software, or you can say the construction ERP software. So today we are going to see what exactly the company is, that is Engineering Design Software and Services Private Limited. ये company क्या है, उसका product क्या है, that is construction ERP. What are the benefits of this construction ERP and who are the clients using this particular ERP? So we'll see that part in the first half, and the second half we'll see how exactly we are going to help for the civil engineering student. What are the opportunities into the construction ERP field for them? And we are also conducting a training schedule for them. So how exactly we are conducting the training, we'll see that as well. So jumping onto the introduction of the company, the first company, that is Engineering Design Software and Services Private Limited, Pune की company है. Second company Precos AG, Belgium based company है. With the classic joint venture of both the companies, we have developed a product that's an ERP, Enterprise Resource Planning. ERP, Enterprise Resource Planning. So with the classic joint venture of both the companies, we have developed a product and we have given a name to this particular ERP, that is HIT Office. HIT-Office is the name of the software. Okay. So introduction of the company, introduction of the construction ERP. What exactly the construction ERP? ERP stands for Enterprise Resource Planning Software. Okay. So ERP, so many industries are using the ERP, like manufacturing have the ERP, your own institute must be having your own institutional ERP. Automation sector have their own ERP. Likewise, same like in the construction industry or the civil industry, we got an ERP that we call construction ERP. It is integrating all your department like estimation, budgeting department, planning department, purchasing department, और ये सभी जो departments रहेंगे वो एक platform पे रहेंगे. That is what the construction ERP is doing. Okay. So how exactly, what exactly construction ERP, what exactly it does? It achieves the result that is whoever the company, जो company use करती है उनके लिए जो भी project है, जो भी वहाँ पे ongoing काम है, if they want to finish within time and within budget, they are going through the construction ERP. So this gives the result today by construction by using the ERP solution, which is flexible, standard, up to date, and efficient. What exactly the HIT Office ERP is the one of the ERP from the construction sector, that is the construction ERP. Name of the ERP, that is HIT Office. HIT-Office is the name of the software. This particular ERP only dedicatedly only developed for the construction industry, nothing else. Only for the construction industry. It is suitable for the contractors, builders, and the construction consultants. This particular ERP, also some of the PMCs like project management consultancies, they are also using this particular ERP. It got the strong technical models. This particular ERP is going to use by the civil engineering students or the civil engineering professionals. So it got the strong technical models with the high level of flexibility.
It also have the user friendly and the minimal data entry option. Whether you go for any of the software, while you are using the ERP, you want to make sure that okay, मेरा काम कम होना चाहिए, वहाँ पे data entry कम होनी चाहिए, मेरा वहाँ पे user friendliness होना चाहिए, मेरी efficiency बढ़नी चाहिए वहाँ पे. So this is what ERP is doing. It also got easy customization and better reporting option into the software. This particular ERP is developed by the company that is Engineering Design Software and Services Private Limited, Pune की company है. So we got our own development team at any particular point of time. आपकी कोई builder firm है, contractor firm है, institute है या कोई भी है जहाँ पे आपको एक construction ERP use करना है, वहाँ पे एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप बोलते हैं कि नहीं मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, वहाँ पे कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, वहाँ पे कोई नया रिपोर्ट बना के चाहिए, तो our team is there to make sure that it is easy customization, better reporting available. It also have the smooth interaction with the other application. For example, आपकी कोई बिल्डर फर्म ही है, आप एक 5-6 साल से अभी ऑलरेडी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं. नाउ ऑलरेडी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर भी हो गए, लाइक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, आपके पास एमएसपी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, आपके पास लाइक प्राइमवेरा जैसे आपके पास प्लानिंग का सॉफ्टवेयर होगा. ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर तो आपके पास ऑलरेडी है, तो वही सॉफ्टवेयर से मुझे मतलब कोई डेटा इनपुट करना है तो दैट इंटरेक्शन इज पॉसिबल. कोई डेटा आपका एक्सेल में, दैट कैन बी इम्पोर्टेड टू आवर सॉफ्टवेयर. कोई डेटा आपको एक्सेल में इंपोर्ट करके चाहिए, दैट इज पॉसिबल. आपका डिटेल प्लानिंग शेड्यूलिंग आपका एमएसपी या प्राइमवेरा में हो चुका है, तो आप वहां से वाइस वर्सा वहां पे कोऑर्डिनेट कर सकते, वहां से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते, यहाँ से वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते, लाइकवाइज. सो यू गॉट द स्मूथ इंटरेक्शन विद द अदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन व्हिच आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. So this is the hit of this ERP. Who are the clients using ERP? Pan India, all over the world. We got the clients from the Europe, we got the clients from the Pan India. In Pan India, we got more than 1,000 builders, contractors, they're already using our software. So all over the world, we got the 1,600 builders, contractor in Pune, that is the small metro city we got in the Maharashtra. So in Pune itself, more than 250 plus builders, contractor, they're already using our ERP. Also, Chennai got 175 builders contractor. They're already using our ERP. Also, Visakhapatnam there, Vijayawada also. We got Hyderabad. We got the client. Also, Mumbai. We got the client. So Pan India, we got 1,000 plus clients. They are using our ERP. They are some of them are the builders, some of them are the contractors, some of them are construction consultant, architect. Likewise. So, what are the benefits of this particular construction ERP? Okay. So this particular construction, any construction ERP, I'm not talking about the only hit office ERP, any construction ERP, but there's so many benefits. It is like the improvement in the real-time coordination in the operation. Any particular point of time, you want to see, okay, what is estimated data, what is planned data, what is executed data, you want to see over there. So it got the real-time coordination between all the department, that is possible. Also, it is have the timeliness of the information sharing. Any particular point of time, you want to check, okay, reconciliation, that is possible. It is also work as a helping hand into the strategic execution. For example, आपका कोई ऑलरेडी एक काम चल रहा है, आपको नया काम चालू करना है, वहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मेरे पास अभी बैलेंस कितना है, मेरा कैश फ्लो का स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा, मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, तो इट इज गोइंग टू वर्क एज ए हेल्पिंग हैंड फॉर यू, फॉर योर कंपनी, फॉर बिल्डर और फॉर द कॉन्ट्रैक्टर. It is also have the connectivity of information between the all departments. As I said, all the departments are integrated on one platform. So estimated department can provide the data to the purchase department or the store department, or store department can share the data. Okay, how much stock is available on my site to their top management. Likewise, better monitoring of the project. It got the multi-project facility. It is not like the just a one project is going to work there. Multi project facility, आप यहाँ पे कितना भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं. आपके एक ही मतलब भोपाल में ही आपके समझो चलो 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे इंदौर में, देवास में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इट गॉट बेटर मॉनिटरिंग. आपका कोई हेड ऑफिस भोपाल में ही है और आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देवास में आपका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंदौर में, सो आपको मॉनिटर करने हैं. सो बेटर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स थ्रू वन ERP, दैट इज पॉसिबल. It is also it helps your company to improve demand supply analysis. Okay, what is required at my site, what is available on my site, what is extra thing available on my another site, can I transfer that to
another side, like वो side to side transfer कर सकते हैं क्या instead of buying the product from the market. So that is possible. That is improved demand, supply analysis can be managed with software. Effective purchase and inventory management, what was I talking? Effective decision making. So कोई भी मतलब नया काम चालू करना है, आपके पास पूरा डेटा रहता है कि आपका कोई डुप्लीकेट प्रोजेक्ट है या सेम प्रोजेक्ट आप करने वाले हो या कोई नया एरिया में आपका प्रोजेक्ट करना है, तो कुछ डिसीजन के लिए आपके पास कोई टूल्स होने चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए. दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन ERP. It is increasing the productivity and profit margin. See, as companies are using the ERP, for example, आपका एक simple example लेता हूँ. So most of the students must be aware about estimation and costing. उन्होंने estimation costing तो किया ही होगा, like उन्होंने Excel में estimation costing किया होगा. So for example 5 लाख स्क्वायर फुट का 5 लाख स्क्वायर फुट के प्रोजेक्ट का मुझे डिटेल एस्टिमेट करना है, तो मुझे एक्सेल में, मेरे पास टीम है फॉर एग्जांपल 5 लोगों की, उनको मैं बोला कि 5 लाख स्क्वायर फुट के बजट प्रोजेक्ट का आपको डिटेल एस्टिमेट करना है. सो इट इज गोइंग टू टेक द टाइम लाइक 27 to 30 days. 1 महीने का टाइम लगेगा थ्रू द एक्सेल में से करेंगे. तो अभी मैं उनके पास एक ERP देता हूँ, लाइक मेरा एक कंस्ट्रक्शन ERP गिट ऑफिस नाम का एक ERP दे दिया. सेम 5 लोगों को मैंने बोल दिया कि आपको डिटेल एस्टिमेट करना है, बजट करना है ये सॉफ्टवेयर से. सो जो काम मेरा 28 से 30 लगने वाले थे, दैट कैन बी फिनिश विद इन 7 to 9 days. सो दैट इज इंक्रीजिंग माय प्रोडक्टिविटी. सो इट इज increasing the productivity of my people, so it is going to help my company to increase my profit margin. It is also going to reduce your overhead. Okay, the wastage, reconciling financial, as I told you, estimated, plan, executed, any particular point of time आपको देखना है कि exactly मेरा प्रोजेक्ट जहाँ कहाँ पे रहा है. मैंने एस्टिमेट किया था मेरा 1 CR का, मेरा एक्चुअल एग्जीक्यूशन कितना हुआ है, 50% एग्जीक्यूशन हुआ है. मेरा कितने पैसे जाने चाहिए, तो 50 लाख सपोज टू आई हैव टू इन्वेस्ट, तो मेरा एग्जैक्टली गया कितना है. सो ये रिकंसिलिएशन डे टू डे बेसिस आपको देखना है, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना है, तो ये सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट मतलब आपको अवेलेबल हो जाते हैं जस्ट बाय द क्लिक. एक टोटल सॉफ्टवेयर में इफाइड से कि एक टोटल जो अपना ERP है, टॉपिस ERP है, इसमें से अराउंड 251 रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड जस्ट बाय द क्लिक्स through this particular ERP. Also, it got the centralized control. These are the benefits of the construction ERP. So what are the? So I'm talking about the construction ERP, and it is a technical product. It is going to be used by the civil engineer. So what are going to be a major engineering models available in software? That is the estimation model, project management model, and the inventory model. So these are the 3 engineering models available in our software. By commercial aspect wise, we got the sales module. Also कमर्शियल एस्पेक्ट वाइज आपके पास सेल्स भी रहेगा, उसके बाद आपके पास HR भी रहेगा, वहाँ पे पास आपके स्टाफ मैनेजमेंट का रहेगा, अकाउंटेंसी का रहेगा. ये भी मॉडल्स अवेलेबल में सॉफ्टवेयर में. बट बाय सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट वाइज if I want to talk, okay, these are the 3 models. You guys are the civil engineer, you must be aware about the quantity surveying subject. So here you will understand कि quantity surveying में या estimation costing में मैंने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से होगा, दैट आई विल अंडरस्टैंड थ्रू द एस्टिमेशन मॉडल. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल में मेरा प्रोजेक्ट प्लानिंग होगा, मेरा इन्वेंटरी में मटेरियल मैनेजमेंट का होगा. सो ये एक मोडल में थोड़ा सा डिटेल में ले लेता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस वन. एस्टिमेशन एंड बजटिंग मॉडल, जिसमें क्या है, एक रेडीमेड डेटाबेस है. ये जो मॉडल है, पहला इंजीनियरिंग मॉडल है, इसमें मेरा काम इजी क्यों हो जाता है, मेरा काम आसान से क्यों हो जाता है, मेरा काम विद इन टाइम किस तरीके से हो जाता है. आई विल अंडरस्टैंड कि आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली गॉट इन दिस पर्टिकुलर module. The first database available in this particular module, that is the resource database, the resource library you can say. Second library available into the software, that is the work item specification library. And the third library available into the software, that is the rate analysis library. So these are the 3 libraries available into the software. So ये library किस तरीके से है, so master data बोलते हैं हम उसको, या resource library आप बोल सकते हैं. master data में पहली library है resource library.
वहां पे आपके जो भी मटेरियल्स लगते हैं पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जो भी रिसोर्सेज लगेंगे लाइक मेन मशीनरी टूल्स मनी, these are the resources I will be required. Okay, so these resources are listed in such a way that is a single line specification of the each resource is given into the software. Like cementous product में सीमेंट के अंदर सीमेंट 53 ग्रेड रहेगा, उसका एक सिंगल लाइन स्पेसिफिकेशन भी दिया है, उसका यूनिट भी दिया है, उसका परचेस प्राइस भी दिया है। इस तरीके से मतलब हर एक मटेरियल का वहां पे मैंने सिंगल लाइन स्पेसिफिकेशन, यूनिट एंड परचेस प्राइस, दिस लाइब्रेरी इज मेंटेन ऑलरेडी देयर, सो इट गॉट मोर देन 1500 material listed in this particular library. Okay, so second library available into the software, that is the work item specification library, or you can say that कि मेरा साइट क्लीनिंग से लेके फिनिशिंग तक जो भी एक्टिविटीज होती है, सब एक्टिविटीज होती है, वो सभी यहाँ पे मास्टर डेटा में वर्क आइटम लाइब्रेरी के अंडर मैंने वहां पे लिस्ट की है। अगेन उसका मैंने किस तरीके से दिया है, सिंगल लाइन स्पेसिफिकेशन, इसका यूनिट और उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया है। सो ये सेकेंड लाइब्रेरी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। और ये जो एक्टिविटी है साइट क्लीनिंग से लेके फिनिशिंग तक की, ये सभी एक्टिविटीज का मैंने वहां पे रेट एनालिसिस करके दिया है सॉफ्टवेयर में। सो दिस इज मटेरियल एंड लेबर, उसके कोएफिशिएंट वहां पे ऑलरेडी सेट है। ऑन टॉप ऑफ दैट एनी लाइब्रेरी इफ यू वांट टू, आपको वहां पे कोई मटेरियल ऐड करना है कर सकते हैं, उसका परचेस प्राइस चेंज करना है कर सकते हैं, उसका रेट एनालिसिस का कोएफिशिएंट ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये M20 ग्रेड फ्लाई ऐश, ये जो मेरी एक्टिविटी है उसमें मटेरियल कौन से प्रोपोर्शन में लगेंगे, उसके लेबर उसके क्या प्रोपोर्शन लगेंगे, उसके कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसका क्वांटिटी सीमेंट क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर कितना लगेगा मुझे, इसका एक कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया है। सो एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो भी चेंज करना है कि नहीं मुझे वहां पे देखना है कि नहीं ठीक है ये कोएफिशिएंट यहाँ पे चेंज करना है, मुझे देखना है कि एग्जैक्टली नहीं ये कोएफिशिएंट मतलब ये कोएफिशिएंट मेरे कंपनी के लिए सूट नहीं होते, मेरे अलग तरीके से आपको चेंज कर सकते हैं। सो दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल इनटू द सॉफ्टवेयर, दैट इज changing, adding of any material, editing any material or deleting any material or the coefficient, that facility is available into the software. That is the first thing available into the software. Second, budget preparation, यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं budget preparation के लिए हैं। वहाँ पे आपका कोई बजट एक्सेल में रेडी होगा, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई ऑलरेडी एक एस्टिमेट हिट ऑफिस में रेडी होगा तो नया प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज है सॉफ्टवेयर में जो कि अवेलेबल है कि 1 बाय 1 एक्टिविटी वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपका जो वर्क आइटम स्पेसिफिकेशन दिया है मैंने सॉफ्टवेयर में, सो एक एक एक्टिविटी भी वहां पे इंपोर्ट करके उसका लेंथ ब्रेथ डेप्थ आप सॉफ्टवेयर में डाल देंगे तो आपका डिटेल बजट बन जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं सॉफ्टवेयर में बजट बनाने के। पहला मैंने जो बताया कि एक्सेल से इंपोर्ट करके हो सकता है। सेकेंड, आपका कोई एस्टिमेट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में बना है, उसको ही आपको नए प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है या उसका प्रोटोटाइप यूज करना है तो कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि आपको एक फ्रेश वहां पे डिटेल बजट बनाना है तो वो भी पॉसिबल है कि एक एक एक्टिविटी इंपोर्ट करके, जो कि एक्टिविटी मेरे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो पहला रिपोर्ट सिस्टम से जनरेट होगा, दैट इज द एस्टिमेशन रिपोर्ट। ये पहला रिपोर्ट जनरेट होगा। जैसे ही मैं पूरा बजट बना लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे एस्टिमेशन रिपोर्ट में मिल जाता है कि description of the activity, unit, quantity, rate and the total amount for that activity. Okay. Second, quotation output, यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि excavation, PCC, RCC ये एक्टिविटी के लिए मेरा हेड वाइज कितना कॉस्ट गया है और उसका टोटल सबमिशन कितना हुआ है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो ओवरहेड कॉस्ट है वो मेरे कितने लगने वाले हैं। ये टोटल बाइफरकेशन आपका एक लास्ट पेज पे भी आ जाएगा। So this is the first report will be available through the ERP. Second report available through the ERP, that is the measurement sheet. यहाँ पे आप as for example if you are working as a estimation engineer, मैं साइट पे काम करने वाला बंदा हूँ तो what I'm going to ask कि आपसे मेरे को मेजरमेंट शीट मिलनी चाहिए। एक क्लिक से आपको एक मेजरमेंट शीट मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट निकाल दो, साइट वाले बंदे को दे दो। वैसे ही आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग एज एस्टिमेशन पर्सन, आप एक एस्टिमेटेड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं परचेस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता होनी चाहिए कि हर एक रिसोर्स वाइज रिक्वायरमेंट मुझे अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि मेरा ये टोटल प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट उसका बेसिक रेट क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, टोटल अमाउंट क्या रहेगा,
परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना रहेगा उसका. So I will understand from here estimated material requirement from here. Okay, so this is the another report which can be generated through the ERP. Okay, so these are the some of the reports I have shown under the estimation and budgeting model. So पहला अभी कोई लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, not a problem. So far we have seen कि ERP क्या है. ERP stands for Enterprise Resource Planning Software. कंस्ट्रक्शन ERP है हमारा, जो कि हमारी कंपनी ने इंजीनियरिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया है. उसमें 3 इंजीनियरिंग मॉडल्स है. पहला मॉडल है एस्टिमेशन मॉडल, सेकंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल और तीसरा है इन्वेंटरी मॉडल. सो पहला मॉडल हमने देखा अभी कि एस्टिमेशन मॉडल में होता क्या क्या है. उसमें एक रेडीमेड डेटाबेस अवेलेबल है रिसोर्सेज का, वर्क एक्टिविटी का और उसका रेट एनालिसिस. उसका यूज करके डिटेल बजट किस तरीके से करते हैं वो अभी हमने देखा, और कौन से रिपोर्ट जनरेट हो सकते हैं. सो इसमें एक मॉडल में ऑलमोस्ट आपके 50-55 रिपोर्ट जनरेट हो जाते हैं सिस्टम से बाय द क्लिक्स. सो ये पहला मॉडल है. So jumping on to the next model, that is the project management model. What is project management model we got here? That is the same model which will be used for the planning scheduling. Like आपका MSP है, Microsoft Project है मार्केट में, आपका Primavera भी है, आपने देखा होगा, आप में से कोई स्टूडेंट्स ने, प्रोफेशनल्स ने देखा होगा ये सॉफ्टवेयर या यूज भी किया होगा प्लानिंग के लिए सॉफ्टवेयर. सो वी गॉट द सेम फंडामेंटल्स जो कि एमएसपी में, प्राइमवेरा में, वही फंडामेंटल्स हमने प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर यूज किए हैं, जहां पे आप प्लानिंग कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं आपकी एक्टिविटीज. उसके जैसे आप प्लानिंग शेड्यूल करेंगे उसके बाद आपको एक कैश फ्लो का स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाएगा. सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है. जैसे एज ए बिल्डर पूरे काम तो मैं नहीं करता, मेरे पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, मुझे उनको वर्क ऑर्डर देना है, उनके पास उनको बिल्स जनरेट करके देना है, उनके पीरियडिक बिल्स मुझे जनरेट करके देना है. सो ये किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे प्रोजेक्ट मॉडल में. वहां पे डे टू डे बेसिस पे मुझे डीपीआर फिलअप करना होता है, वो रिपोर्ट किस तरीके से रहेगा वो भी देखेंगे. रिकंसिलेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट जा कहाँ पे रहा है, मेरा whether I am within the budget or over the budget. So I will understand from here under the project management model. पहली चीज है जैसे गैंट चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं. ये सब एक्टिविटी अभी आप बोलेंगे मार्केट में ऑलरेडी प्लानिंग के सॉफ्टवेयर है, फिर भी आपने एक पूरा प्लानिंग का सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्यों बनाया, मतलब प्लानिंग क्यों ले लिया आपने? क्योंकि ये जो सभी एक्टिविटी है, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल इज project management model is basically just a second. Okay, project management model is basically linked to your estimation model. Okay, it is not like कि आपका ये कोई पर्टिकुलर मॉडल के लिए उसके काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है. नहीं, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है, इट इज लिंक्ड टू योर एस्टिमेशन मॉडल. सो ये जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन में की है, दिस ऑलरेडी एक्टिविटीज आई हैव seen into the estimation model. I have done the detailed budget over there. That all activities I have imported from the estimation model to मेरे project management model में यहाँ पे import करके दिए. So ये मुझे benefit होता है MSP प्राइमवेरा में. अगर मैं MSP प्राइमवेरा में वापस से estimate budget करने के लिए जाऊँ तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा अभी. So that should not happen. So activity planning chart here. Second thing available दैट इज आपका एक प्लानिंग बन जाता है तो आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां से बन जाएगा कि आपको हर एक मटेरियल कौन से यहाँ पे कौन से टाइम पे यूज होने वाला है, कौन से मंथ में यूज होने वाला है, उसका अमाउंट कितना लगेगा, उसका क्वांटिटी कितना लगेगा, उसकी प्राइस क्या रहेगी. सो दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर. सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है यहाँ पे. ओके, सो ये अलग मॉडल है. सो ये प्लानिंग का मॉडल मैंने, रिकंसिलेशन मैंने आपको दिखाया. प्रोक्योरमेंट मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री जो मटेरियल है वो मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने देखा कि पूरा परचेस और स्टोर डिपार्टमेंट एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, सो आई गॉट द रिमेनिंग टाइम ओनली 9 minutes over here, नॉट अ प्रॉब्लम. कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मुझे कोई परचेस ऑर्डर बनानी है तो सप्लायर से मुझे जो भी कोटेशंस आते हैं उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिस्टम से जनरेट होगा, परचेस ऑर्डर सिस्टम से जनरेट होगा. जो भी मटेरियल साइट पे डिलीवर होता है तो सप्लायर का नाम, उसका चलन नंबर, ट्रक नंबर, इन टाइम आउट टाइम,
उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, एग्जैक्टली क्या मटेरियल डिलीवर हुआ है, उसका इन्वर्ट मुझे करना है, ये भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सिस्टम में ही मैं एक गुड्स रिसिप्ट नोट बना सकता हूँ कि जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है उसका एक एग्जैक्टली मटेरियल क्या रिसीव हुआ है, उसका पीओ नंबर क्या था, आगे पीओ, उसका साइज, स्टॉक हिस्ट्री मुझे देखना है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल मेरे यहाँ पे जनरेट रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल 200 बैग्स ऑफ सीमेंट वाज रिसीव्ड ऑन साइट, तो उसमें से 50 बैग पीसीसी के लिए गए, 30 बैग पुटिंग के लिए, 20 बैग प्लिंथ बीम के लिए, 100 सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। ये साइट स्टॉक हिस्ट्री का मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। सो अंटिल नाउ वी हैव सीन द ईआरपी, हिट ऑफिस ईआरपी, उसके मेजर मॉडल शॉर्ट में ही देखे हम लोगों ने। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे पास, किस तरीके से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बताता हूँ। सो फार ईआरपी, हिट ऑफिस ईआरपी, उसके मॉड्यूल लाइक एस्टिमेशन मॉडल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल एंड द इन्वेंटरी मॉडल, ये 3 इंजीनियरिंग मॉडल्स है। मतलब आपके कंपनी में एक बार ड्राइंग आ गई, या बिल्डर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या पीएमसी हो, आपके पास ड्राइंग आ गई, उसके बाद का आपको सेल्स तक का पार्ट ये सभी सॉफ्टवेयर से ही मैनेज होगा, ये तीनों के 3 मॉडल के अंडर। ओके, सो उसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये certification program for the civil engineering student. Why you should learn this particular software? Because the industry needs such people who are well qualified about in this particular software, well aware of the fundamentals of the ERP. So we need such people, and they also got the advantage over the non-certified student. किसके लिए अपॉर्चुनिटीज है? स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, उसके बाद जिनको खुद का बिजनेस चालू करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन लोग ये सॉफ्टवेयर पढ़ सकते हैं? उसका ट्रेनिंग सेशन क्या रहेगा कि लेवल 1 जो रहेगा हमारा, सो लेवल 1 में रहेगा कि 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, लेवल 2 में 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, लेवल 3 में आपका वहां पे इंटर्नशिप रहेगा 4 महीने का। सो लेवल 1 में ये ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा, ये एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क होता है, ये मॉडल्स कौन से यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। उसके बाद लेवल 2 में आपका ये सॉफ्टवेयर 500 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई की कंपनी में आपको ये करना है, इसका इंस्टॉलेशन करना है। तो एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चीजें होनी चाहिए एज ए ईआरपी इम्प्लीमेंटर, मेरे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, ये लेवल 2 में हम पढ़ाते हैं। और लेवल 3 में ये जो आपने पढ़ा लेवल 1 और लेवल 2 में, उसका एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या किस तरीके से यूज होगा। और 4 मंथ्स की इंटर्नशिप रहेगी, पेड इंटर्नशिप, जो कि हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। सो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस तरीके से एक ऑनलाइन हिट ऑफिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे क्लाइंट जैसे इंदौर में है, देवास में हमारे क्लाइंट है, हमारे कोई क्लाइंट भोपाल में भी है, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम आपको इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं। सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ऑलराइट। So here I was talking about the level 1. यहाँ पे for the level 1 it is going to cost you 4,997 for the per student. Okay, so this is the cost for the level 1. So I will suggest the students to go for the level 1. यहाँ पे हमने स्पेशल डिस्काउंट वी हैव ऑफर्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द SIRTS के बच्चों के लिए, सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के लिए, जो कोर्स हमारा 5,000 में था, 4,997, वी आर चार्जिंग ओनली 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट फॉर द लेवल 1। यहाँ पे आपको उसके साथ क्या दिया जाएगा, फ्री स्टूडेंट कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर दिया जाएगी आपकी। आपका डेली ट्रेनिंग रहेगा 1 घंटे का, 1.5 आवर्स के आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, 10 दिन के लिए ये ट्रेनिंग रहेगा। After the successful completion of the training, you will be awarded with the certificate. Certificate इस तरीके से लेगा, हिट ऑफिस सर्टिफिकेशन। ओके, ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो कि इम्प्लीमेंटर है, जो अभी कंपनीज में काम कर रहे हैं एज ए इम्प्लीमेंटर, जिन्होंने ये कंपनी अलग अलग जगह पे ये जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट किए हैं। सो रितेश रायकर है, अश्विन नक्का, they got more than 10 years of experience. So these are the people going to train. Okay, so these are the trainers and this wall. Okay, so here I'm going again back. So training schedule. So I would like to have the questions because we got only 4 minutes left over here. My contact number I'm writing down into the chat box. Till then you can ask me the questions. Okay. यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है? चैट।
Hello. Anybody has a question? Yes. You can just ask in chat box. Because of the shortage of the time, I have finished very quickly. I'm writing my number over here, 7028605156. This is my direct contact number. You can also reach me to email address as well, shubraj@pdsa.co.in. This is the email address I'm providing as well. So you can reach me to me by my contact number 7028605156. और अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वो भी पूछ सकते हैं. Yes, anybody got the queries? ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेवल 1 we are going to conduct for the students ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा. आपको लेवल 1 जो ट्रेनिंग है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा. लेवल 1 का ट्रेनिंग रहेगा 4997 का जो है कॉस्ट उसका. We are only asking for the 1000 rupees per student under this. Okay. For the only special discount, special cost for the SIRTS students. With that, एक आपका 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा. आपको एक स्टूडेंट कॉपी सॉफ्टवेयर की प्रोवाइड की जाएगी. डेली 1 घंटे का ट्रेनिंग, 1.5 आवर्स का आपका असाइनमेंट 10 दिन का, और उसके पास आती है आपको एक सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया जाएगा. तो उसके बाद आप सोच सकते हैं लेवल 2 लेवल 3 के लिए. पर फॉर लेवल 1 राइट नाउ वी गॉट लाइक ERP सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्या क्या होती है उसके हैंड्स ऑन लिए जाएंगे. सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन आपके लैपटॉप या पीसी पे किया जाएगा. हर एक मॉड्यूल का लाइक एस्टिमेशन मॉड्यूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल और इन्वेंटरी मॉड्यूल, ये हर एक मॉड्यूल का डिटेल में आपका ट्रेनिंग किया जाएगा. एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा. इट विल बी फॉर द 10 days. Any queries, guys? Students, you can ask into the chat box, or you can unmute yourself and ask the question. Yes. Jackson, any professors, if they have any questions, they can ask me. तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर भी दे देंगे. हाँ, यस सर, यस सर. वो कैसे, जैसे सर यदि सपोज वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे तो कैसे उनको सॉफ्टवेयर मिलेगा? अभी सर उनको उनके पास लैपटॉप या पीसी होने चाहिए उसके लिए. अच्छा, नहीं आप उसको शेयर कर देंगे क्या मेल के थ्रू या? नहीं, डायरेक्टली हमारे सपोर्ट टीम उनका लैपटॉप का एक्सेस लेके ट्रेनिंग चालू होने से पहले 1 घंटे पहले उसका इंस्टॉलेशन करके देंगे आपको. जी जी जी. हाँ, ट्रेनिंग चालू होने से पहले या पहले दिन उसके इंस्टॉलेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा वो सर? ऑनलाइन ही हो जाएगा. इंस्टॉलेशन भी ऑनलाइन ही करके देंगे सर. जी सर. सर ये आपका सर्टिफिकेट